हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैनन एकेडमी। आज से मैं एक नया वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। सो दिस वीडियो सीरीज विल फोकस प्योरली ऑन हाउ टू वर्क विथ मूडल। ओके, मूडल इज MOODLE। तो मूडल, पहले हम ये समझ लेते हैं कि मूडल है क्या चीज़। सो to be very specific in terms of what Moodle as an organization suggests is that Moodle is an open source learning platform and it is considered as world's most popular learning management system. अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम समझें कि ठीक है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, ओपन सोर्स है, बट व्हाट वी कैन अचीव बाय यूजिंग Moodle। ओके, सो कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें या फीचर्स की बात करें हम Moodle के लिए, तो इट्स वेरी रोबस्ट। इट इज अ वेरी पावरफुल टूल for online teaching as well as online management of teaching learning process. Okay, you can set up your own Moodle account and then start creating the different courses, and whatever the courses are in front of you, those courses you can enroll the students, and then further you can do the activities related to that particular course. Fine. It is definitely used in teaching learning process, wherein you can create the courses, you can give assignments to the people or participants or students who are enrolled in your course. Then you can uh, assign and take quizzes. आप एग्जाम्स भी ले सकते हैं on the with the use of this model platform. Okay. तो बेसिकली व्हाट आई वांट टू टेल यू इज कि आप Moodle का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं फॉर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। फाइन। लेकिन हमें ये एक एक करके समझना होगा कि Moodle में कैसे कोर्सेज क्रिएट करते हैं, Moodle में पार्टिसिपेंट्स कैसे ऐड करते हैं, आप क्विज कैसे ले सकते हैं, आप अपने मटेरियल्स कैसे अपने स्टूडेंट्स को सेंड कर सकते हैं। फाइन। सो ऑल दीज थिंग्स वी विल सी by seeing different videos that I will present before you in coming days। ठीक है, तो आज हम जो बात करने वाले हैं, हम बेसिक, वेरी बेसिक थिंग हम डिस्कस करेंगे, जो कि है what how you can work on Moodle, how you can log in, how you can access your different courses। आप Moodle के डैशबोर्ड्स पे क्या कर सकते हैं, वेरी बेसिक हम डिस्कस करेंगे टुडे। ठीक है, तो आप जो मेरे डेस्कटॉप पे अभी देख रहे हैं, दिस इज द वेब पेज ऑफ Moodle। सो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको Moodle, आप गूगल पे सर्च करते हैं तो आपको moodle.org वेबसाइट मिलेगा। आप moodle.org पे जाके यू कैन स्टार्ट creating your Moodle account। Okay, you can see that get started today पे जब आप क्लिक करेंगे, okay, so you can do a lot of things। आप फर्स्ट टाइम यूजर्स हैं, so it will be very much useful to you अगर आप इसके डिफरेंट पोस्ट्स, डॉक्यूमेंटेशंस आप पहले पढ़ लें। ओके, एंड you can see those documentations are available here। You can also download the Moodle platform if you want some demo, okay, some development, some translation that you want to do from your end, you can do that। okay, it is completely open source in nature। open source means कि आप इसका यूटिलाइजेशन जो है अपने एंड पे अकॉर्डिंग टू योर स्पेसिफिक नीड्स आप कर सकते हैं। ओके, तो हम धीरे धीरे समझेंगे कि क्या क्या वो यूटिलाइजेशन है, बट आप देख सकते हैं ये आपका Moodle का वेब पेज है। फाइन। सो मेरे इंस्टीट्यूट में Moodle का यूज एकेडमिक पर्पस के लिए होता है, टीचिंग लर्निंग के लिए। सो मेरे इंस्टीट्यूट ने के हेल्प डेस्क ने मेरे लिए एक अकाउंट क्रिएट किया है, एंड वॉट एवर द configuration needs to be done, those configurations are done by my IT help desk। so I'm just telling you that if you want to access the learning management system of Moodle, then in my case it is lmsit.ac.in एंड स्लैश Moodle। ओके, जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मुझे ये वेब पेज मिलता है। आप देख सकते हैं कि अभी फिलहाल जो कोर्सेज दिए हुए हैं, सो देर आर 4 different kinds of courses which my help desk or my academic team has prepared for me। now what are those courses I can see when I log in to my account? So for that I have to click on the login option on the right top, and then I have to enter my username and password and create on login। Okay, now if you want to log in as a guest, I will tell you कि login as a guest कैसे किया जाता है, उसका क्या use है, I will tell you। Okay, but first we will just see how to log in। so आपने username password enter किया है,
and then I am just logging in. आप देख सकते हैं जब मैं फर्स्ट टाइम लॉग इन करता हूँ, सो दिस इज द होम पेज ऑफ माई ऑफ मी बीइंग अ यूजर, मींस मेरे यूजर का आप देख सकते हैं मेरा नाम यहाँ पे मेंशन्ड है, वॉट एवर अदर थिंग्स आर देयर लाइक डैशबोर्ड. सो डैशबोर्ड इज what you see now. Okay, you can also visit the your profile, you can see the grades if you have assigned some assignments to the students and आपको उसके grades देखने हैं evaluation के बाद, तो आप देख सकते हैं messages if any. Okay, preferences if any. Okay, so आप सारे settings यहाँ से कर सकते हैं. This is the डैशबोर्ड. अब आप देख सकते हैं डैशबोर्ड पे अगर आप क्लिक करते हैं तो ये पेज आपको मिलता है, इसका मतलब ये डैशबोर्ड कहलाता है. इसमें आप आपके पास कैलेंडर है, आपके पास इफ यू हैव सम प्राइवेट फाइल्स यू कैन upload and save it on your Moodle account. So if you click on my courses, then you can see that I have basically at this point of time three different courses. One is SWE for CCE and multi-system, multi-agent systems. Okay, so ये तीनों courses आप देख सकते हैं मेरे पास अवेलेबल है यहाँ पे, एंड आई कैन जस्ट क्लिक ऑन देम एंड डू द एक्टिविटीज वॉट एवर आई वॉन्ट टू डू. ओके, सो वो एक्टिविटीज के बारे में बाद में देखेंगे. अब इम्पोर्टेंट ये है कि आप देख सकते हैं आपके राइट हैंड साइड पे इस डेस्कटॉप पे इफ यू हैव शेड्यूल्ड सर्टेन इवेंट्स लाइक असाइनमेंट्स है एंड ऑल है, तो आप जो है उन असाइनमेंट्स पे को यहाँ पे आप आपकी अपकमिंग इवेंट्स पे आप डिस्प्ले कर सकते हैं. ओके, so if certain activities are there that you want to show on timeline, तो जैसे ही आप वो activities create करते हैं तो आपके timeline पे यहाँ पे show होता है. Okay, if you want to now you can see the online users. So as of now I am a user who is currently on Moodle, and one another user is there, so it is also shown over here. Okay, you can see the calendar over here. So this is the dashboard. We must understand कि dashboard पे हम क्या कर सकते हैं. ये कोर्स ओवरव्यू टैब है. अब अगर आपको कस्टमाइज करना है अपने पेजेस को अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप कस्टमाइज दिस पेज बटन पे क्लिक करेंगे. वंस यू क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर बटन, सो आप देख सकते हैं आपके पास लर्निंग प्लान, कोर्स ओवरव्यू. इफ यू वांट टू ऐड समथिंग लाइक रिसेंटली एक्सेस्ड कोर्स, तो आप क्या कर सकते हैं, उस पे आप सेटिंग्स पे क्लिक करके, करंटली मैंने इसको हाइड करके रखा है, आई कैन जस्ट click on show recently accessed courses block. Okay, तो it will be shown to me. Okay, तो आप देख सकते हैं रिसेंटली मैंने मल्टी एजेंट सिस्टम्स कोर्स को एक्सेस किया है, तो इट इज शोन टू मी. ठीक है, आप लर्निंग प्लान को भी आप अपने इसमें एक्सेस कर सकते हैं. आप अगर आपने कोई प्लान बनाया है कि भाई मैं इस पूरे सेमेस्टर में जो कोर्स लूंगा उसमें ये असाइनमेंट्स लूंगा, ये क्विजेस लूंगा. ओके, and this will be the midterm end term examination, what is the weightage of each and every evaluation components. So वो सारे जो डिटेल्स हैं वो मैं लर्निंग प्लान में इंक्लूड कर सकता हूँ. ओके, इसके बाद फिर जब मेरा कस्टमाइजेशन फिनिश हो जाता है, तो फिनिश करने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, अपने जो बटन है ऊपर, इस पे मैं स्टॉप कस्टमाइजिंग दिस पेज पे क्लिक करके इसको मैं फिर अपने डैशबोर्ड पे मैं वापस स्विच कर सकता हूँ. फाइन. एक चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं लर्निंग प्लान एट द टॉप है. मैं अगर चाहता हूँ कि मेरा जो कोर्स ओवरव्यू है दैट शुड कम ऑन द टॉप, तो मैं क्या करूंगा, ये जो आपके पास एरो के साइंस है नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में, इस एरो पे मैं लेफ्ट क्लिक करके इसको मैं जब मैं मूव करूंगा, तो आप देख सकते हैं ये मेरा मूव हो जाएगा. तो क्या होगा कि कोर्स ओवरव्यू ऊपर आ गया, लर्निंग प्लान एंड रिसेंटली एक्सेस्ड कोर्स जो है वो नीचे आ गए. करेक्ट. सो आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं. इट इज वेरी इजी फॉर यू. सिमिलरली इफ आई वांट टू डू इट अगेन, मैं अगेन इस तरीके से ऊपर जाके इसको कर सकता हूँ. ठीक है. इसके बाद क्या है, दूसरी बात कि whatever is you can hide, you can just click on this settings, you can hide, you can show, you can configure what you want to do with your um, course. Okay, and whatever the different types of courses that are enrolled. So उसके लिए आपको इस settings में जाना होगा. Fine. अभी मैं कस्टमाइज करना मेरा फिनिश हो चुका है. आई एम नॉट गोइंग टू कस्टमाइज फर्दर, सो आई विल जस्ट क्लिक ऑन स्टॉप कस्टमाइजिंग दिस पेज. अब हमने क्या सीखा, अभी हमने सीखा कि आप कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं पेजेस को. फाइन.
तो इसके बाद आप देख सकते हैं मेरे डिफरेंट कोर्सेज हैं। तो मैं लेट अस सपोज अगर मल्टी एजेंट सिस्टम्स जो कोर्स यहाँ पे मेंशन्ड है इस पे क्लिक करता हूँ तो मैं उस कोर्स में चले जाता हूँ। आप देख सकते हैं कि इसमें कोर्स में जाने के बाद मैं बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ कि लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट्स, बैचेस, what are the different competencies, okay, what are the different like you can upload the course information file of the that particular subject. Then you can upload the different PPTs and PDFs and you can take quizzes. As you can see, I have already taken one quiz. Okay, तो ये सारी चीजें हम कैसे करते हैं we will see in the next video. Okay, till then, thank you very much. Have a nice day.